Nina Sahani and I'm back with the new video for class 12, and in this video we are doing the new chapter of English, that is the third level. So third level is from Vistas, and let's get started to this chapter. So let's start with this chapter, The Third Level by Jack Finney. Have you ever had any curious experience which other finds hard to believe? So here the narrator is saying कि आपने अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कभी किसी ने उस बात पे बिलीव करा ना हो या उस पे बिलीव करना मुश्किल हो गया हो. So let's see इसमें नरेटर ने क्या एक्सपीरियंस किया है. The president of the New York Central and the New York New Haven Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब यहाँ पे नरेटर इज सेइंग जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के न्यू हेवन हैटफोर्ड रेल रोड के, दे कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग कि सिर्फ 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट मीन्स नरेटर हैड एक्सपीरियंस 3 levels or 4 level, maybe something more than 2, right? But I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. तो नरेटर इज सेइंग कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 3 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, बट इफ यू आस्क एनीबॉडी दे कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है. Yes, I have taken the obvious step. I've talked to a psychiatrist friend of mine among others. तो वो बोल रहा है कि yes, I have taken the obvious step. मैं psychiatrist के पास भी गया because for everyone third level do not exist, but for me it exists. तो इसलिए मैं अपने एक psychiatrist friend के पास भी गया to talk about this. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. And now the narrator is saying कि मैंने अपने psychiatrist friend से डिस्कस किया था about the third level at the Grand Central Station, and उस psychiatrist friend ने कहा it might be a waking dream in wish fulfillment, मतलब जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ waking dream में हुआ है. He said I was unhappy. Now the narrator is saying कि he said that I was unhappy, कि मैं शायद unhappy था, that is why मुझे ये dream आई. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. So narrator is saying कि मेरे psychiatrist friend ने समझाया that maybe I am unhappy, और ये सुन के मेरी wife को बहुत गुस्सा आया because there was nothing about being unhappy. तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने उसे समझाया, नरेटर को समझाया कि मॉडर्न वर्ल्ड में द लाइफ इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, full of fear, full of war, full of worriness, and most of all the things, and that is why he wanted to escape all from all these things. Maybe तभी इसी रीजन की वजह से उसको वो वेकिंग ड्रीम आई. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Now the narrator is saying that I know everybody who wants to escape from their life, जिसको अपनी लाइफ से भागना है, दूर जाना है, but कोई भी मेरी तरह कोई थर्ड लेवल पे नहीं आता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, because it do not exist. All right, it does not exist. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. अब वो बोल रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि यही रीज़न है तुम्हारे थर्ड लेवल तक पहुंचने का, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, एंड बाकी सारे फ्रेंड्स ने भी इस चीज़ पे एग्री किया. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम, और जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दैट ही वांट टू escape, and everything points that कि third level exist भी करता है. Let's see how. My stamp collecting, for example, that's a temporary refugee from my reality. तो वो बोल रहे कि जो मेरा stamp collecting है, it also shows that I want to escape from my life, and it is a kind of a temporary refugee of my life. Well, maybe, but my grandfather did not need any refugee from reality. Things were pretty nice and peaceful. अब वो बोल रहे कि शायद ऐसा हो, शायद ना हो, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर है, he did not want to run away from the reality, and उस टाइम पे things were very nice and peaceful. So things in the grandfather time was very nice and peaceful.
फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और वो बोल रहा है कि जो भी मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुना था उनके टाइम पे चीज़ें बहुत अच्छी थी एंड ही वॉज द वन हु स्टार्टेड हिज कलेक्शन, सो ऑब्वियसली उनको तो अपनी रियलिटी से नहीं भागना था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फोर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। एंड वो बोल रहा है कि जो उसके ग्रैंडफादर ने कलेक्शन की करी थी, इट वॉज अ वेरी नाइस कलेक्शन। उसमें 4 ब्लॉक्स थे, यूएस का इशू था और फर्स्ट डे कवर भी था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और वो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, एज यू ऑल नो। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बता रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल पे उसके साथ क्या हुआ। One night last summer, I worked late at office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it is faster than the bus. तो वो नरेटर इज टेलिंग कि वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ। वो बता रहा है कि एक रात को लास्ट समर में ही वॉज वर्किंग टिल लेट एट ऑफिस एंड ही वॉज इन अ हरी टू गो बैक टू हिज वाइफ टू हिज अपार्टमेंट। तो उसने डिसाइड किया कि वो बस से नहीं जाएगा, ही विल गोइंग टू टेक अ सबवे फॉर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल राइट, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और वो बोल रहा है नरेटर, मुझे नहीं पता कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ले, 31 year old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. And now he's telling that I am just an ordinary guy, मेरा नाम चार्ली है एंड मैं 31 years का हूँ, मैंने टैन कलर का गैबरडीन सूट पहना हुआ था और स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी विद अ फैंसी बैंड। आई पास अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी। और वो बोल रहा है मैं बहुत सारे लोगों के आसपास से निकला जो सिर्फ मेरी तरह दिखते थे एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूजा माई वाइफ। और वो बोल रहा है मैं किसी चीज़ से भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था टू ल्यूजा माई वाइफ, जो कि मेरा वेट कर रही थी एज आई वॉज ऑलरेडी वेरी लेट फ्रॉम द ऑफिस। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. और वो बोल रहा है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा वैंडरबिल्ट एवेन्यू से एंड देन आई वेंट डाउन स्टेप्स, मैं नीचे गया टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century। और जैसे जो फर्स्ट लेवल जहाँ से तुम ट्रेन लेते हो लाइक द 20th century, लाइक पीपल यूज टू टेक इन 20th century। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। और फिर बोल रहा है कि मैं और नीचे गया टूवर्ड्स द सेकेंड लेवल वेयर द suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। तो वो बोल रहा है कि मैं नीचे गया जहाँ पे लोग सबर्बन ट्रेन लेते हैं एंड वहाँ पे एक डोरवे तक जा रहा था एंड जब वो उस डोरवे की तरफ मुड़ा एंड देयर ही वॉज लॉस्ट टू व्हेन ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द सबवे देयर ही वॉज लॉस्ट। दैट्स ईजी टू डू। और वो बोल रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में किसी का गुम होना वॉज वेरी ईजी क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज वेरी बिग एंड इट इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। आई हैव बीन इन and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors। और वो बोल रहा है कि I have been to Grand Central Station hundreds of times, but हर बार मैं कोई ना कोई नई जगह पहुंच जाता था, नई स्टेयर्स पे, नई कॉरिडोर पे, नए गेट पे। So every time he bumps into something new। Once I got into tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel। तो वो बता रहे एक बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक टनल में घुसा एंड वहां से सीधा मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और वो बोल रहा है एक बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 46th Street पहुंच गया which is 3 blocks away। Alright, sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots। And now narrator is saying कि sometime I think कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इट इज ग्रोइंग लाइक ट्रीज, और जैसे नई ब्रांचेस होते हैं, नए स्टेयरकेस होते हैं, वो रूट्स की तरह बढ़ रहे हैं। लाइक जैसे ब्रांचेस और रूट्स बढ़ती है वैसे स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर बढ़ रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। So now the narrator is saying that मे बी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक लॉन्ग टनल थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अंडर द सिटी देयर वाज अ लॉन्ग टनल जो एक साइड टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही थी और दूसरी साइड सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही थी।
And maybe because of for so many people through the year, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. और वो बोल रहा है कि काफ़ी टाइम से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ अ वे टू एस्केप, लोगों के लिए एक जगह थी जहाँ से वो कहीं दूर जा सकते थे, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न मैं उस दिन उस टनल तक पहुँचा, बिकॉज मे बी आई वॉन्टेड टू एस्केप, ही वॉज नॉट श्योर ऑफ इट. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और कभी भी उसने इस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया. The corridor I was in began angling left and slanting downward. तो जिस कॉरिडोर में वो था, नरेटर था, तो इट वॉज एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, एंड इट वॉज स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ जा रहा था. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. तो उसे लगा कि शायद वो गलत रास्ते से जा रहा है, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a sound. और उसको पूरे टाइम सिर्फ अपने पैरों की, अपने फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, बिकॉज वहां पे उसके अलावा और कोई नहीं था. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. और एकदम से उसको एक hollow roar, मतलब ऊपर से जिस टनल से वो निकल रहा था उसके तरफ खुलता हुआ रास्ता दिख रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी. I went down a short flight. Then I heard a sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left, और वहां से tunnel sharp left मुड़ रही थी. I went down on a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और वो बोल रहा है वहां से कुछ दो चार सीढ़ियां नीचे जा रही थी, और वो जा रहा था रास्ता, वो नीचे गया, and there he was at the third level of the Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. तो बेसिकली फॉर अ मोमेंट उसे लगा कि वो सेकेंड लेवल पे वापस आ गया, बट देयर ही सॉ दैट द रूम्स वर स्मॉलर एज कम्पेयर टू द रूम्स ऑफ द सेकेंड लेवल. वहाँ पे टिकट विंडोज कम थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे, और इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो सेंटर में था और वो वुड का था एंड ओल्ड लुकिंग स्टाइल में बना हुआ था. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector. तो बेसिकली उस जो मैन उस इंफॉर्मेशन बूथ पे बैठा था, he was wearing a green eye shade and he was wearing a long black sleeve protector. The lights were dim, light वहाँ पे dim थी. All right, and after that what happened, the lights were dim and sort of flickering. तो जो lights थी वो flicker कर रही थी, जल बुझ हो रही थी. Then I saw why they were open flame gas lights. तो उसने देखा वहाँ वो flicker क्यों हो रही है, because they were not light, they were just a gas light. वो open flame gas lights थी, lanterns की तरह थी. Then moving towards the next page, there were brass pittons on the floor, and across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो वहाँ पे ब्रास पिटन्स थे, पूरे फ्लोर पे ब्रास पिटन्स थे, एंड वहाँ पे उसने स्टेशन में देखा एक मैन था, ही वॉज पुलिंग आउट अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन. तो वो कवर खोलता है, उसका अपनी वॉच को देखता है और वापस अपने फोन करता है और वापस अपनी वॉच पॉकेट में डाल देता है. ही वोर अ डर्बी हैट, उस मैन ने एक डर्बी हैट पहनी थी. ब्लैक 4 बटन सूट पहना था विद टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच. और उसके पास उसकी जो मुस्टैच थी वो बिग ब्लैक लाइक अ हैंडल बार. All right. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तो उस टाइम पे उसने देखा सबको, and every person in the station was dressed like something in 1890s, जैसे 1890s में लोग dress up होते थे. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. तो उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी beard, sideburn और fancy mustaches नहीं देखे थे. A woman walked in through the train gate. वहाँ से एक train gate से woman निकल रही थी. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes. तो उसने basically woman ने क्या पहना था, she was wearing a dress. All right, वो dress कैसी थी, with the leg of mutton sleeves. She was wearing a skirt at the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew.
तो उसने वहाँ पे देखा स्टेशन पे वुमेन के पीछे कुछ लोकोमोटिव्स थे. इट वाज लाइक एन इंजन व्हिच हेल्प्स द ट्रेन टू मूव. कुछ आइव्स ऑटोमोटिव लोकोमोटिव थे एंड देन ही रियलाइज दैट ही इज बैक टू द ओल्ड टाइम. वो पुराने टाइम पे वापस आ गया लाइक इन 1890s. ऑल राइट. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. तो ये सब कंफर्म करने के लिए वो न्यूज बॉय के पास जाता है, जो द पर्सन हु वाज सेलिंग द न्यूज पेपर. एंड वो वहां पे देखता है उसके पेपर्स पे. इट वाज जो पेपर उसकी फीट पे पड़े होते हैं उसको वो ध्यान से देखता है. इट वॉज द वर्ल्ड और पेपर पे लिखा हुआ था द वर्ल्ड. मतलब पेपर पेपर कौन सा था? द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और वो द वर्ल्ड काफी टाइम से पब्लिश नहीं हुआ. सो ही इज बैक टू द ओल्ड टाइम. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड. और जो लीड स्टोरी थी द वर्ल्ड की, इट टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. तो वो public library files देखता है. public library files में क्या date लिखी हुई थी? 11th June 1894. So he is back to the old time. वो 1890s में पहुंच गया था. All right. Then I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Luja and me anywhere in the United States we wanted to go. तो वो थर्ड लेवल पे टिकट कलेक्टर के पास जाता है बिकॉज उसे पता था कि वो थर्ड लेवल पे टिकट लेगा तो ही कैन गो टू एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद हिज वाइफ ल्यूजा. इन ईयर 1894 आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग आइलॉनिस. तो बेसिकली वो टिकट कलेक्टर के पास जाता है और उस टाइम पे उसको 1894 में कहाँ की टिकट चाहिए थी? गेल्सबर्ग आइलॉनिस. Have you ever been there? It's a wonderful town still with the big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. So basically now the narrator is asking that have you ever been to Galesburg? Galesburg एक beautiful city थी. It is a wonderful town जिसमें old frame houses बने हुए थे, huge lawns के साथ बहुत सारे trees थे, बड़े बड़े trees थे. There were tremendous trees. All right. And now further he continued, and in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawn. और वो बोल रहे 1894 में जो समर्स होती थी वहाँ पे, इट वाज ट्वाइस. मतलब जितनी अभी होती है उससे डबल टाइम का डे होता था, इवनिंग होती थी. एंड पीपल जो थे पीपल यूज टू सिट इन देयर लॉन. मेन वर स्मोकिंग सिगार्स एंड दे वर टॉकिंग क्वाइटली. और जो वुमेन थी दे वर वेविंग पाम लीफ फैंस. तो पाम लीफ फैंस को वेव करती थी वुमेन. with the fireflies all around in a peaceful world. और आसपास सारी fireflies होती थी and it was a very peaceful world. To be back there with the first world was still 20 years off. और वो अब कहाँ पे कौन से टाइम पे आ गया था? He was back to the time. और उस टाइम पे आ गया था कि अभी भी वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल पड़े थे. All right. And World War II was 40 years in the future. और World War II होने में 40 ईयर्स पड़े थे. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. और उसको 2 tickets चाहिए थी कहाँ की? गेल्सबर्ग आइलॉनिस की. ऑल राइट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. तो जो clerk वहाँ जिससे वो tickets मांगता है, he was just looking at the at Charlie कि what he was wearing because he was from the modern world and he is back to the old world. एंड फिर वो टिकट फेयर काउंट करता है एंड 2 लोगों के लिए उसके पास इनफ टिकट फेयर था. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. और जब चार्ली पैसे काउंट कर रहा था तो बेसिकली क्लर्क उसको घूरता है. ही नॉडेड एट द बिल्स. वो बिल्स को देख के कहता है, मतलब जो नोट थे चार्ली के पास उसको देख के कहता है, दैट एंट मनी मिस्टर. ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार. और बोलता है कि जो तुम्हारे हाथ में वो पैसे नहीं है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फूल मी देन यू कैन नॉट गो वेरी फार. हम तुम्हें पकड़ लेंगे. एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. तो जो चार्ली है वो कैश ड्रॉर में देखता है कि नोट्स कैसे थे. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल. ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो करेंसी थी जहाँ जो टिकट कलेक्टर के पास थी, इट वाज लाइक द ओल्ड स्टाइल बिल, half again as big as money we use nowadays. And the money was half big as the money they use nowadays and they were different looking. I turned away and get out fast. तो basically चार्ली टर्न करता है and वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश कर रहा है. there is nothing nice about jail even in 1894. and चार्ली बोल रहा है obviously there is nothing nice about the jail even in the older times if I talk about 1894.
एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और तो जिस तरीके से चार्ली आया था वो उसी तरीके से फटाफट वहां से चले जाता है. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियर बाय ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. अब क्या हुआ, चार्ली ने क्या किया, नेक्स्ट डे लंच टाइम पे बेसिकली उसके पास $300 पड़े थे उसके बैंक में, उसने $300 को विड्रॉ किया एंड उन $300 से उसने क्या किया, ही बॉट दी ओल्ड करेंसी नोट. उसने ओल्ड करेंसी नोट खरीद लिया, और ये सुन के जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो और ज्यादा वर्ड हो गया. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. और नाउ चार्ली सेइंग कि यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम ओल्ड मनी बहुत आराम से खरीद सकते हो बट यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर दैट, मतलब वो एक्सपेंसिव मिलेगी. My $300 bought less than 200 in old style bills. तो जो $300 थे नरेटर के, उससे उसने लेस देन $200 खरीदे इन दी ओल्ड स्टाइल बिल्स. बट आई डिड नॉट केयर, एग्स वर 13 cents a dozen in 1894. एंड ही डिड नॉट केयर अबाउट दिस बिकॉज 1894 में जो एग्स थे इट वॉज जस्ट 13 cents a dozen. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, and although I have tried often enough. Now द नरेटर इज सेइंग कि उसके बाद से वो कभी भी उसको थर्ड लेवल नहीं मिला, दो ही ट्राइड ऑफन इनफ टू फाइंड द थर्ड लेवल, पर उसको वो थर्ड लेवल कभी भी नहीं मिला. ल्यूसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप. तो जो ल्यूसा थी उसकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी ये सुन के अबाउट दिस स्टोरी, एंड शी वॉन्टेड हर हस्बैंड टू स्टॉप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, एंड फॉर अ वाइल इवन ही स्टॉप लुकिंग फॉर इट. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वो वापस अपने स्टैम्प्स के पास जाता है, स्टैम्प्स निकालता है, अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन निकालता है. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. बट अब जब वो स्टैम्प्स देखता है उसके बाद से ल्यूसा और चार्ली दोनों एवरी वीकेंड दे लुक फॉर थर्ड लेवल बिकॉज नाउ दे न्यू दैट थर्ड लेवल एग्जिस्ट. नाउ लेट्स सी कि अब थर्ड लेवल कैसे एग्जिस्ट करता है. माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपियर. तो एकदम से क्या हुआ था, चार्ली का एक फ्रेंड था सैम वाइनर, वो अचानक से डिसअपियर हो गया था. नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग. तो किसी को भी नहीं पता था कि सैम एकदम से कहाँ गया, बट शायद नरेटर इज सेइंग कि उसको शायद पता था कि सैम कहाँ गया बिकॉज ही वॉज अ सिटी बॉय. और यूजुअली जो नरेटर है वो सैम को गेल्सबर्ग के बारे में हमेशा बताता था. अब जो नरेटर है वो उसके गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था, उसका चाइल्डहुड गेल्सबर्ग में गुजरा है, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. एंड बेसिकली जब भी नरेटर गेल्सबर्ग के बारे में बताता था अपने फ्रेंड सैम को, तो सैम हमेशा यही बोलता था ही लाइक द वाइब ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. एंड नरेटर इज सेइंग कि वो जो सैम है ही इज राइट एट द गेल्सबर्ग इन 1894 एंड ही इज ऑल राइट. अब नरेटर का फ्रेंड वहाँ कैसे पहुंचा पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे, लेट्स सी दैट. और नरेटर को कैसे पता चला कि वो वहाँ पे है, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. अब बेसिकली एक नाइट व्हेन एक रात को जब बेसिकली नरेटर अपनी सारी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है. नाउ ही इज टेलिंग व्हाट एग्जैक्टली first day cover is. Now let's see what exactly first day cover is. When a stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale. तो जब एक नई स्टैम्प आती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, वो स्टैम्प कलेक्टर्स वो स्टैम्प्स खरीदते हैं और वो अपने आप को मेल करते हैं in an empty envelope and on the first day of the sale. That exactly the first day cover is. All right. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डे. और जो पोस्ट मार्क होता है उस स्टैम्प पे वो प्रूव करता है कि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ दैट स्टैम्प. ऑलराइट, द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और उस एनवेलप को हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. और जो फर्स्ट डे कवर होता है उनको कभी भी वो नहीं खोलते, दे जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवेलप.
That night among my oldest first day cover, I found one that should not have been there. तो उस रात को वो अपने पुराने ओ फर्स्ट डे कवर देख रहा होता है और उसमें से एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहाँ पे कभी भी नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज। बट वहाँ पे उसको वो एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कि उसको उसका था ही नहीं। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो वहाँ पे इसलिए था, मे बी समवन हैड मेल्ड इट टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग। दैट्स व्हाट द ड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। और एनवेलप पे जो ड्रेस है उस था उस पे यही पता लग रहा था कि किसी ने वो एनवेलप उसके ग्रैंडफादर को मेल किया है गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और वो फर्स्ट डे कवर कब से था उनके पास? 18th जुलाई 1894, जो पोस्ट मार्क दिखाता है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। और नरेटर को ये फर्स्ट डे कवर बिल्कुल भी याद नहीं होता। द स्टैम्प वॉज 6 cent डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ अ प्रेसिडेंट गारफील्ड। जो स्टैम्प थी वो 6 cent की लगी हुई थी, डल ब्राउन स्टैम्प थी और उस स्टैम्प पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। अब नेचुरली जब भी एनवेलप होता आता है तो ग्रैंडफादर उसके क्या करते थे, वो उसको अपनी कलेक्शन में डाल देते थे एंड वहां पे वो पड़ी रहती थी टिल आई लुक आउट एंड ओपन इट, जब तक नरेटर उसको खोलता नहीं है और देखता नहीं है। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। और उस टाइम पे जो 18 जुलाई 1894 का फर्स्ट डे कवर था उसके अंदर जो पेपर था इट वॉज नॉट ब्लैंक। लेट्स सी उसमें क्या था। उसमें पेपर में लिखा हुआ था, ये एड्रेस था जो कि ग्रैंडफादर का था गेल्सबर्ग का। और इसमें लिखा था, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। कि चार्ली आई विश कि तुम ठीक ठाक हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और वो बोलते हैं कि आई गॉट टू विश दैट यू वर राइट। बेसिकली चार्ली वो सेइंग कि चार्ली के लिए ये लेटर था और चार्ली के लिए लिखा हुआ था कि चार्ली आई पहले मैं ये विश करता था कि काश तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो अबाउट द थर्ड लेवल, बट लेटर ऑन आई बिलीव्ड यू that you were right because I found the third level and Charlie it's true I found the third level। और जिसने भी ये लेटर लिखा वो बोल रहा है कि चार्ली इट इज ट्रू, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मैं यहाँ मेरे को यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डालीज। और मैं कहाँ पे हूँ? राइट नाउ आई एम एट द स्ट्रीट डालीज। समवन इज प्लेइंग पियानो। यहाँ पे कोई पियानो प्ले कर रहा है एंड दे ऑल आर आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। और सब जो है बाहर मिलके गाना गाते हैं। और कौन सा गाना है? सीइंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड। और मुझे भी वहाँ इनवाइट किया गया फॉर अ लेमोनेड। कम ऑन बैक चार्ली एंड ल्यूसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। और वो बोलते हैं कि कम ऑन चार्ली एंड ल्यूसा, कम बैक टू दिस टाइम, I am waiting for you and it is worth finding it, so keep looking for it। And this is from the note was signed by Sam। and this is a proof that grand central level पे third level exist करता है। At the stamp and the coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency। तो जब वो स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है नरेटर तो उसे वहां से पता लगता है कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी है। एंड दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इस वजह से वो अपना नया बिजनेस सेट कर पाएगा जो उसको हमेशा से करना था, द ग्रेन एंड hay little hay feed business। He always said that what he really wished he could do and he certainly can't go back to his old business। और हमेशा से ये बोलता था कि मुझे यही बिजनेस करना है, बट ड्यू टू सम रीजन वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर पाता था। बट देयर नाउ ही इज डूइंग दैट बिजनेस नॉट इन गेल्सबर्ग एलाइनस इन 1894, his old business। why Sam was my psychiatrist। और सैम अपना पुराना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो गेल्सबर्ग 1894 में नहीं था उस टाइम पे, जब न्यू टाइम पे। एंड ही वाज द साइकेट्रिस्ट। एंड जब वो उसे गेल्सबर्ग जाने का मौका मिला टू बैक टू द 1894, ही स्टार्टेड हिज ओल्ड बिजनेस जो हमेशा से वो करना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। And that is it for today. And if you still have any doubt, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. And do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. You can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for the notes of these chapter. Moreover, for online and offline classes, you can contact us on the number given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.